dear students. In my today's lecture video, I am going to talk about one of the most interesting topics of organic chemistry, that is enantiomer. The topic's heading is already written here. Now let us discuss about these topics. Before going to the in-depth discussion, first we should know about the meaning of this word enantiomers. तो हम लोग ये देखेंगे कि enantiomers का मतलब क्या होता है. तो ये जो enantiomers है, ये जो वर्ड है enan, इसका मतलब है ऑपोजिट, और ये जो मार्स है, ये जो मार्स enantio का मतलब है ऑपोजिट्स, और मार्स का यूनिट है, और यू कैन से द मार इन प्लूरल इट इज मार्स. तो इसका मतलब होता है यूनिट. क्लियर? तो किस टाइप का यूनिट? इसका मतलब हम बताएंगे पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर which has equal but opposite optical rotation value. मतलब अगर उसमें मैंने पेयर बोला, इसका मतलब है अगर उसमें दो आइसोमर रहेगा, पेयर मतलब अगर एक का रोटेशन प्लस अल्फा मतलब ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू, और तो ऑपोजिट जो होगा उसका आ जाएगा माइनस अल्फा. That means in case of unit we want to mean that it is a pair of optical isomers which has equal but opposite optical rotation value. That means if one isomer has plus alpha rotation, then definitely the another isomer will have minus alpha rotation. इसका मतलब हुआ कि enantiomers जो है ये एक्चुअली ऑपोजिट एक रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू प्रोवाइड करता है. ये इसको याद रखना है. ऑप्टिकल ऑपोजिट रोटेशन किसका होगा ना? प्लेन ऑफ द पोलराइज्ड लाइट. जो पोलराइज्ड लाइट है उसका जो प्लेन है उसको जब रोटेट कराएगा एनंशियोमर, तो इक्वल रोटेशन होगा. प्लस अल्फा तो उसका ऑपोजिट होगा माइनस अल्फा, लेकिन उसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज कंप्लीटली ऑपोजिट होगा. तो हम और भी चीज बताते हैं कि एनांशियोमर्स होने के लिए ये तो चाहिए कि इट मस्ट बी ऑप्टिकल आइसोमर. ठीक है, जिसका ऑप्टिकल रोटेशन वैल्यू एक का प्लस हाफ तो दूसरे का माइनस प्लस अल्फा और दूसरे का माइनस अल्फा होना चाहिए. दिस इज नॉट ओनली द सिंगल क्राइटेरिया. तो इसका और क्या क्या क्राइटेरिया है, लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. सपोज एनांशियोमर्स में नंबर 1, it should be mirror image. It should be mirror image relationship between the two isomer. When I am talking about the pair, it should have two isomer. It is quite clear. So it should have a mirror image relationship, but we should keep in mind the mirror image should be non-superimposable. Clear? These two criteria is the essential criteria, but this is not only the final or sufficient criteria for defining enantiomers. But at the very beginning, we should have this idea to understand the enantiomers. Okay. The another word of enantiomers is, I'm writing here, enantiomorphs. ये वर्ड भी यूज होता है. एनांशियोमार जैसा बहुत ही कॉमन वर्ड है, सिंपली एनांशियोमार्स के साथ एनांशियोमॉर्फ्स ये वर्ड भी यूज होता है. तो हम लोगों ने क्या देखा, अगर इसका समाप्त करें तो इट शुड बी मिरर इमेज, इट शुड हैव ए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और दिस टू आइसोमर शुड बी ऑप्टिकल आइसोमर and it should be pair of optical isomer which has equal but opposite direction of alpha. Alpha means optical rotation value. Clear? तो ये किसको रोटेट कर पाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ये
प्लेन ऑफ द पोलराइज लाइट को रोटेट कर पाता है. तो नाउ टू अंडरस्टैंड और टू बेटर अंडरस्टैंडिंग वी आर टेकिंग सम एग्जांपल्स. लेट्स सी. आई एम टेकिंग द फर्स्ट molecule. The first molecule is the lactic acid. Lactic acid. Suppose we have carbon and this one is OH, this one is H, this one is COH and this one is CH3. This is the molecule and definitely this is lactic acid molecule. A bar means this is acid. And if I am giving one mirror here, this one is the symbol of mirror. So I am giving its mirror image. So the mirror image looks like this. OH, C and COOH here. This one is H and this one is CH3. And this is also lactic acid. This is, suppose this one is structure 1 and this one is structure 2. So now we can easily define structure 1 and structure 2 are the enantiomers, because you can see here the molecule, this molecule has a asymmetric chiral carbon, that means asymmetric carbon or chiral carbon, and this molecule also has a asymmetric carbon, and structure 2 is the mirror image of structure 1, but these two structures are non superimposable. ये बात कैसे पता चलेगा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल? अगर हम आर्बिट्ररीली ये स्ट्रक्चर 1 के सामने ये जो स्ट्रक्चर 2 है, ये स्ट्रक्चर 2 मॉलिक्यूल है, इसको उठा के अगर मैं स्ट्रक्चर 1 के सामने रख दूं तो तुम देख सकते हो कि फ्रॉम H के सामने आ जाएगा OH, कार्बन कार्बन मैच होगा, लेकिन COH इस साइड में रहेगा और इस स्ट्रक्चर में COH राइट साइड में रहेगा. ये तो H के सामने जो OH वो तो अलग हो गया, तो इट शुड नॉट बी सुपर इम्पोजिबल, रादर इट इज ए नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज. कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रक्चर 2 को स्ट्रक्चर 1 के सामने आर्बिट्ररी उठा के लेके देखना है. ओके, नाउ लेट मी वन थिंग. दिस इज एग्जांपल ऑफ एनांटियोमर्स. ये याद रखना है कि मिरर इमेज रिलेशनशिप देखना पड़ेगा, पैरेलली इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल है या नहीं उसको भी देखना पड़ेगा. सिर्फ मिरर इमेज होने से ही काम नहीं चलता है. कभी कभी ऐसा बहुत सारा मॉलिक्यूल है कि उसका मिरर इमेज होता है बट वो सुपर इम्पोज कर जाता है. अगर दोनों के अंदर सुपर इम्पोज हो रहा है तो वो एनांटियोमर नहीं बनाता है. मैं इसके बारे में बताऊंगा. सुपर इम्पोजिबिलिटी को समझने के लिए ये दो हाथ, हम लोगों का जो दो हाथ है, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होगा कि दिस इज द लेफ्ट हैंड एंड दिस इज द राइट हैंड. अगर मैं इन दोनों को ऐसे करके सुपर इम्पोज किया, ठीक है, एक हाथ के ऊपर मैंने दूसरे हाथ को रख दिया, तो यू कैन सी कि जो थंब है ये दोनों आउटसाइड में निकल रहे हैं. ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड का थंब है, ये तुम्हारा राइट हैंड का थंब है. दैट मीन्स ये जो थंब है ये दोनों थंब एक साथ सुपर इम्पोज नहीं हो रहे. मतलब वी कैन से दैट द लेफ्ट हैंड इज द and the right hand is the mirror image, left hand is the mirror image of right hand, but they are non superimposable mirror image. इसको तुम अच्छी तरह से समझने के लिए बोल सकते हो कि किसी आदमी का लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड में जो रिलेशन है ये एनांटियोमेरिक रिलेशन है. आई होप कि तुम लोगों को ये प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल समझ में आया. अगेन वी आर टेकिंग अनदर एग्जाम्पल. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लैक्टिक एसिड एंड नाउ आई एम टेकिंग सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड. ओके, let me draw the structure secondary butyl chloride, and this is the mirror. Suppose I am taking this one is C, chlorine, here it is CH3, here it is hydrogen, and this one is C2H5. This is secondary butyl chloride. This is the structure 1, and what would be the structure of its mirror image? The mirror image should be Cl, C, H, and this thing is CH3 and this thing is C2H5. So this is the structure 2. Again you can check it. Structure 1 and structure 2 both are mirror image of each other, but structure 1 and structure 2 are non superimposable mirror image. That means these two are enantiomeric pair. So it is clear. One more thing is there, that is
what are the fundamental condition of enantiomerism और enantiomers? enantiomer या enantiomers बनाने के लिए फंडामेंटल कंडीशन क्या चाहिए? दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो हम फंडामेंटल कंडीशन में पहला बात बताएंगे कि नंबर 1, इट शुड हैव डीसिमेट्री और कायरालिटी। क्लियर? इसका मतलब है एक डिसिमेट्रिक और कायरल कार्बन रहना चाहिए। In my previous lecture video, I already told you what do you mean by the chiral center or chiral carbon. The carbon having 4 different atoms or group of atoms. When any carbon is attached with 4 different atoms or group of atoms, this kind of compound or molecule is called chiral molecule. Okay. So dissymmetry and chirality should be there. लेकिन ये याद रखना है कि chiral होने से ही all the time enantiomer होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर ऐसा है कि कायरल मॉलिक्यूल है लेकिन उसके अंदर 2 चीज है, 2 चीज मतलब एक हो जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड एक होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये दोनों के ऊपर हम कभी अलग एक वीडियो बनाएंगे कि व्हाट डू मीन बाय द प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड व्हाट डू मीन बाय द सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसके ऊपर एग्जांपल लेके वीडियो बनाएंगे। तो ये अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर रह गया या सेंटर ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल के अंदर रह गया तो वो एनांशियोमर नहीं होगा। इसका मतलब है हम लोगों को पहले चेक करना है कि कायरलिटी है या नहीं है, उसके बाद चेक करना है, मान लो कि कायरल है, अकायरल होगा तो कोई सवाल ही नहीं है एनांशियोमेरिज्म का। ओके, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, मैं बताऊंगा। ऐसा हर टाइम नहीं होता है कि अकायरल मॉलिक्यूल है, कायरल सेंटर नहीं है फिर भी एनांशियोमर है, मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, एक्सेप्शन है। तो कायरल होने के बाद कायरल मॉलिक्यूल है, उसका मिरर इमेज भी बनता है, बट हम लोगों को चेक करना है कि जो कायरल मॉलिक्यूल के अंदर मिरर इमेज है उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या सेंटर ऑफ सिमेट्री है। दोनों में से कुछ नहीं है, कोई भी सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो डेफिनेटली वो जो मिरर इमेज बनेगा दैट वुड बी नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज और हम उसको एनांशियोमर बताएंगे। दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। ओके, सो ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है। नाउ लेट मी टॉक अबाउट वन थिंग। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट यू मीन बाय द कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन भी बोला जाता है, जैसा लैक्टिक एसिड इज अ कायरल कार्बन, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड इज अ कायरल कार्बन, एंड लॉट्स ऑफ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 2-methyl butanol is a chiral carbon is there, so lots of examples are there. Okay, now we are talking about the compound is chiral, but still due to the presence of the plane of symmetry the compound is not going to produce enantiomeric pair. कायरलिटी है लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए वो मॉलिक्यूल एनांशियोमर नहीं बना पाएगा। ठीक है, आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। सपोज द एग्जांपल इज मेसोटार्टरिक एसिड, rather you can say the mesoform of tartaric acid, mesotartaric acid. What is the formula of mesotartaric acid? Mesotartaric acid, let me draw the structure. Suppose this one is COH, COH, H, COH, H and COH. Okay, this one is nothing but the mesotartaric acid. You can see this carbon is chiral. I am giving one star. सबको पता है कि chiral carbon को हम स्टार से और एस्ट्रिक से इसको डेजिग्नेट करते हैं। ये जो सेकेंड कार्बन है दैट इज ऑल्सो chiral, ठीक है, बट वन थिंग इज देयर, ये जो तुम्हारा 2 chiral कार्बन है हम दिखा देते हैं कि दिस कार्बन इज अटैच्ड टू इट COH ग्रुप, OH ग्रुप, H ग्रुप एंड द एंटायर दिस फ्रैगमेंट, सो दिस वन इज chiral। पहले कभी कभी किसी स्टूडेंट का डाउट हो जाता है कि सर ये chiral कार्बन कैसे बन गया। इसके बारे में मैंने बताया कि ये COH है, OH है, H है और ये नीचे पूरा जो ग्रुप है इसको लेके ये वाला सेंटर chiral है। ओके,
और ये जो है इसके लिए भी सेम लॉजिक, ऊपर का एक पूरा ग्रुप है H, OH एंड COH, दैट्स व्हाई दिस टू कार्बन्स आर कायरल। लेकिन अगर हम लोगों ने ये जो दो कायरल कार्बन है इसके बीच में से किसी प्लेन को डाल दे, एक ग्लास शीट या मेटल शीट को इसके प्लेन के अंदर से डाल दे, तो तुम लोग देख पाओगे कि द अपर हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द लोअर हाफ, इक्वल दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा, एंड दैट इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ओके, सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द प्लेन ऑफ सिमेट्री। मुझे पता नहीं कितना अच्छा होगा, क्लियर। सो दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ plane of symmetry. Suppose I am going to draw the plane of symmetry. Okay, so this is the plane. You can imagine it. This is the plane. ये मैंने प्लेन को डाल दिया, ये मैंने प्लेन को डाला। दिस इज द प्लेन। जो प्लेन इसके अंदर से जा रहे, ट्राई टू इमेजिन दिस, अंदर से जा रहे, तो ये वाला ऊपर का जो पार्ट है, ये जो ऊपर का जो पार्ट है, दिस इज द मिरर इमेज ऑफ दिस लोअर पार्ट। दिस टाइप ऑफ प्लेन इज कॉल्ड plane of symmetry is represented by sigma. Plane of symmetry is represented by sigma. This type of plane is called sigma H. H stands for horizontal. Two types of plane of symmetry is there. I will prepare one more lecture video. I will make one more lecture video on these topics, plane of symmetry and center of symmetry. So today's class, in this today's class, I'm not going to explain plane of symmetry and center of symmetry in a elaborate way. So this one is called the sigma H, horizontal plane of symmetry. So इस मॉलिक्यूल के अंदर से अगर मैं horizontal plane of symmetry को डाल दिया तो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। ड्यू टू दिस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द प्लेन ऑफ सिमेट्री, जो इसका मिरर इमेज बनेगा, अभी मैं दिखाऊंगा, वो तो मिरर इमेज बन जाएगा, बट वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज नहीं होगा। मैं उसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, अगर तुम चाहते हो तो यू कैन टेक इट एज ए स्क्रीनशॉट। ओके, सो आई होप कि तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अभी मैं इसको ड्रॉ करके क्लियर दिखा देता हूं कि ये क्यों ऐसा होता है। क्लियर, सपोज इसमें तो दो कायरल सेंटर हम लोगों ने दिखाया, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कायरल सेंटर, बट ड्यू टू द प्लेन ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री it produce superimposable mirror image. So I am writing here again COH, COH, H, COH, H and COH, and I am giving here another mirror, and finally what I am getting COH, COH, H, COH, and this one is H and COH. Clear? So now this one is the structure 1 and this one is the structure 2. So फिर से हम लोग एक बात बता सकते हैं कि अगर हम लोगों ने इसको, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को, स्ट्रक्चर 2 को ऐसा रोटेट करके फ्रंट में लेके आते हैं, इसको ऐसा लेके आया फिर इसको घुमा दिया, तो ये आइडेंटिकल हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर 2 और ये स्ट्रक्चर 1 पूरा सेम टू सेम सुपर इंपोज हो जाएगा ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, और दूसरा बात है कि अगर मैं इस मॉलिक्यूल के अंदर से भी प्लेन को चलाया तो भी अपर हाफ इज द मिरर इमेज ऑफ द लोअर हाफ, और इसको मैंने अगर रोटेट करके इसके सामने लेके आया तो ये भी सेम मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगा तो ये क्या होगा ना, ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज प्रोड्यूस करता है और एनांटियोमेरिक पेयर क्रिएट करता है। अभी मैं बताऊंगा द कंपाउंड डोंट हैव एनी कायरल सेंटर बट स्टिल इट कैन एबल टू प्रोड्यूस एनांटियोमेरिक पेयर। Two, 3 pentadiene is the example. 2,3 pentadiene is the example.
नो chiral center but still able to produce enantiomers. No chiral center but still able to produce enantiomers. So I am giving you the example: carbon, double bond carbon, carbon, this one is CH3, this one is H, this one is CH3 and this one is H. ये 2,3 पेंटाडाइन है, तो इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, बट इसका मिरर इमेज पॉसिबल है, बट जो मिरर इमेज होगा वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगा ड्यू टू दिस काइंड ऑफ एलीन सिस्टम. ये 2 डबल बॉन्ड है, तो इसमें ये वाला भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये सेंटर भी कायरल नहीं है. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल जिसमें कायरल सेंटर नहीं है बट स्टिल ये एनांटियोमर प्रोड्यूस करता है. दैट इज द थिंग. आज के क्लास में इतना ही. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में.